You need some chicken wings, about a dozen of them, some salt, some pepper, chili sauce, flour, canola oil, vinegar, red chili sauce. I'm going to show you how to cut a chicken wing first. So first you cut through the skin, then you expose the bone and then cut through the rest of the skin. The tip part of the wing I'm not going to use because it hardly has any meat on it. Now I'm going to preheat the oven to about 400 degrees Fahrenheit. Put the chicken wings in a bowl and season it with some salt and pepper. Add hot pepper sauce to it. If you like it hotter, then you can add some more, and about a tablespoon of canola oil. Mix this well. Take the flour and put it into a Ziploc bag and add the chicken wings to this. Close the bag and toss the chicken into the flour so that each chicken gets nicely coated with the flour. So I have taken a tray which I have lined with foil and I'm going to spray some canola oil on it. Now I'm going to take out each piece and line them on the baking tray just like this. Keep them a little apart. Now we will spray some more canola oil on top. This will help them to get crispy on the outside as well. Now in they go. For about 30 minutes, we will take a pan, add freshly grated ginger to it. Now add the chopped crushed garlic, some brown sugar, some white wine or vinegar. I am using rice wine vinegar here, and some chili sauce, and bring to a boil. Now also add a splash of soy to this. After this is brought to a boil, simmer it till the garlic becomes soft. Now let me see if these are done. Wow! We're going to flip them across. Some more canola on this. Put them back into the oven for another 30 minutes. Now the chicken wings are ready to remove from the oven. Wow, they smell awesome. And immediately pour the sauce over it. Toss nicely so that each chicken wing is nicely coated with the sauce. Let it cool for a while so that the sauce will soak into the coating of the chicken wing. Now these are done. These look so delicious. I'm serving it with mascarpone cream cheese sauce. रसोई कंपनी के व्यूअर्स आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेहतरीन चिकन डिश कढ़ाई चिकन। ये सुपर यमी डिलिशियस रेसिपी के लिए 1 किलो चिकन, 1.5 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून धनिया के बीज, 6 काली मिर्च, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून घी, 2 तेज पत्ता, 1 कटे हुए प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 कटे हुए टमाटर, 4 टेबलस्पून टमाटर की प्योरी, नमक स्वाद अनुसार, आधा कप पानी, 1 कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया, गार्निशिंग के लिए अदरक और हरी मिर्च जूलियन आकार में कटे हुए और 1 पीस अदरक। सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे सारे खड़े मसालों को भून के। इसमें कोरिएंडर सीड्स, जीरा और काली मिर्च लीजिए। अब इसे भून के इसे मिक्सी में पीस लीजिए। कुछ ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। तेल थोड़ा गर्म होने पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। अब डालेंगे हम तेज पत्ता, प्याज और उसे हल्का सा भून लेंगे। अब ये हल्का भूरा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिलाइए ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का सारा कच्चापन निकल जाए। अब हम डालेंगे हमारा भुना हुआ मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसकी खुशबू बहुत ही खूब आने वाली है। रसोई कंपनी में कढ़ाई चिकन के बड़े ही लोग फैंस हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी डालने से इसमें थोड़ी सी खटास आएगी और साथ ही मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा। अब हम डालेंगे हमारे चिकन।
ध्यान से इसे धोकर अच्छी तरह से डालिएगा। डालने के बाद इसे सूखा ही अच्छी तरह से भूनिए और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट पकने के बाद आपके कढ़ाई चिकन में अलग ही रंग आ जाएगा और इसकी खुशबू से आपका किचन महक उठेगा। इसके बाद नमक डालिए और इसे हल्की आंच पर और 5 मिनट अच्छी तरह से पकने दीजिए। कढ़ाई चिकन की स्मेल तो बड़ी ही खूब आ रही है। अब लास्ट पार्ट हम डालेंगे हरी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद इसे फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखते हैं चिकन कैसा दिख रहा है। ओह यम्मी। अब इसमें डालेंगे धनिया। गार्निशिंग के लिए एक अच्छा सा बोल या फिर प्लेट लेंगे और इसे सर्व करेंगे। रसोई कंपनी अब इसे गार्निश करेगा अदरक और हरी मिर्च से। गरम गरम खाइए, लोगों को भी खिलाइए और खुश हो जाइए जी। रसोई कंपनी में आज बनाएंगे बटर मिल्क फ्राइड चिकन। इसके लिए आप चिकन के 8 बड़े टुकड़े लीजिए। आप कौन सा भी पीस यूज कर सकते हैं। 1.5 कप आटा, मैदा या कोई भी टाइप का फ्लार लीजिए। 2 कप छाछ, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून काइन पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, तलने के लिए तेल, आधा टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून काइन पेपर, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच नमक। रसोई कंपनी के बटर मिल्क फ्राइड चिकन के लिए सबसे पहले हम एक जिपलॉक बैग लेंगे। उसके अंदर हम छाछ डालेंगे, कुछ ऐसे। आप छाछ घर में भी बना सकते हैं, ये यूजुअली इंडियन होम्स में तो मिल ही जाती है। अब इसमें हम डालेंगे सारे स्पाइसेस जैसे कि पेपरिका पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, नमक, काइन पेपर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, कुछ ऐसे। अब एक एक कर अपने चिकन के पीसेस को इस बटर मिल्क स्पाइस्ड वर्जन में डालिए, कुछ ऐसे। इसे डालने के बाद जिपलॉक को अच्छी तरह से जिप कीजिए और इसे अच्छी तरह से कुछ ऐसे मिला लीजिए। कमिंग अप रसोई कंपनी फैक्ट। बटर मिल्क में जब आप चिकन सोक करते हैं तो उसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है। नहीं दही नहीं, बल्कि बटर मिल्क। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, अपने फ्लावर में सारे स्पाइसेस मिक्स करिए। लहसुन का पाउडर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली पाउडर, व्हाइट पेपर, सॉल्ट और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाइए। फ्रिज में से आपका जिपलॉक बैग निकालिए, कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। दोस्तों, रसोई कंपनी आपको एडवाइस करता है कि बटर मिल्क फ्राइड चिकन के लिए तेल थोड़ा हाई पे रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। दूसरी ओर अपने चिकन को फ्लावर से ऐसे कोट करिए। एक ट्रे में होने के बाद इसे निकाल दीजिए। फ्लावर को चिकन पर अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। जैसे ही आप सारे पीसेस कवर कर लेंगी, वैसे ही इसे धीरे धीरे करके फ्राई करना शुरू कर दीजिएगा। आपका बटर मिल्क फ्राइड चिकन तैयार है। के संग आज बनाएंगे बच्चों और सबकी फेवरेट चिकन नगेट्स। इसके लिए 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उसे ऐसे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। 2 अंडे लेंगे, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 कप ब्रेड क्रम्स। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई सूखी ब्रेड पड़ी हो। आधा कप चीज लिंक्स क्रश्ड। चीज लिंक्स बाजार से मिलते हैं और इसे सिर्फ क्रश करके आपको इसके अंदर डालना है। इससे एक अलग ही स्वाद आएगा दोस्तों। तेल तलने के लिए सबसे पहले चिकन के क्यूब्स पर हम अंडा डालेंगे और फिर उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार या जितना आपको पसंद हो। उसके बाद डालेंगे काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप हाथ भी यूज कर सकते हैं और जैसे रसोई कंपनी कर रहा है, आप स्पैचुला की मदद से इसे फेंट सकते हैं और इसे कोट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इसे कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब थोड़ी देर बाद जब हम इसे निकालेंगे तो अंडा और चिकन अच्छी तरह से घुल जाएगा। अब एक प्लेट लीजिए, उसमें ब्रेड क्रम्स डालिए, चीज लिंक्स क्रश डालिए। दोस्तों, इससे आपके चिकन नगेट्स में एक अलग ही क्रंचीनेस आएगा, जिससे आपके नगेट्स खूब स्वादिष्ट बनेंगे। अब एक एक चिकन क्यूब्स निकालिए और उसे ब्रेड क्रम्स और चीज लिंक्स के साथ ऐसे कोट कीजिए। देखिए, ये ऐसे अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे खाएं तो चिप्स जैसे आपको क्रंचीनेस मिलेगी। इसे फिर से आप कोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा और क्रंचीनेस लाने के लिए।
वैसे दोस्तों, चिकन नगेट्स तो सबके फेवरेट है, रसोई कंपनी के भी हैं और कोई भी पार्टी में आप इसे स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं। देखिए, इसे ऐसे ही अच्छी तरह से कोट करते रहिए। याद रखिए कि चिकन का हर साइड आपके ब्रेड क्रम्स और चीज लिंक से कवर्ड होना चाहिए। इसी से जब आप इसे बाइट करेंगे तो आपको एक अलग टेक्सचर मिलेगा। गरम तेल में इसे डीप फ्राई कर लीजिए, कुछ ऐसे। अगर तेल गर्म हो तो आपके चिकन नगेट्स बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ऐसे ही इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहें। याद रखिए, क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट पीस है, इसीलिए बहुत जल्दी पक जाएगा। तो सिर्फ आपको ऊपरी हिस्सा जब ब्राउन होना दिखना शुरू हो जाए तब इसे निकाल लीजिएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कौन बोलता है कि सिर्फ फास्ट फूड बाहर का पसंद आता है? घर में बनाओ तो इसका स्वाद ही कुछ और होता है ना दोस्तों। रसोई कंपनी अब आपको बनाना सिखाएगा इसकी सॉस। सबसे पहले 2 टेबलस्पून मेयो लीजिए, 1 टीस्पून चिली सॉस लीजिए, 2 टीस्पून टमेटो केचप लीजिए। अब इसे बोल में डाल के अच्छे से मिला लीजिए और सर्व कीजिए। कितना शानदार लग रहा है। चिकन पॉपकॉर्न, नाम तो सुना होगा। रसोई कंपनी की तरह आप भी इसकी दीवानी लगते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। 2 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उसे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 कप आटा, 1 फेंटा हुआ अंडा, 2 से 3 टेबलस्पून दूध के, 1 कप ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, 1 कप कॉर्नफ्लेक्स क्रश किए हुए, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम चिकन के छोटे क्यूब्स कर लेंगे। उसमें नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसिकली इसे मैरिनेट करना है। फिर एक प्लेट लीजिए, उसमें ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए नमक और काली मिर्च और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध में अंडा डालिए और उसे ऐसे फेंटिए। अब रसोई कंपनी का टॉप सीक्रेट, ये इसमें क्रंचीनेस लाने वाला है दोस्तों। ये है कॉर्नफ्लेक्स और इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर और फिर उसे ऐसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसिकली ये एक कोटिंग है। अब हम हमारे चिकन क्यूब्स लेंगे। सबसे पहले हम उसे मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर में डालेंगे, फिर अंडा और दूध के मिक्सचर में डाल के उसे कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में कोट करेंगे। दूसरी बार भी हम सेम प्रोसीजर दोहराएंगे ताकि कोटिंग अच्छी तरह से लग जाए। इसे अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे गोल आकार देंगे, कुछ ऐसे हथेलियों से। फिर इसे साइड में रख देंगे और बाकी चिकन पॉपकॉर्न भी ऐसे ही बना लेंगे। दिखने में कितने खूब लग रहे हैं ना। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल गरम कीजिए और एक एक चिकन पॉपकॉर्न को ऐसे तेल में फ्राई कीजिए। रसोई कंपनी में चिकन पॉपकॉर्न की बहुत सारे फैन हैं। इसे आप कभी भी बनाकर खाइए। ईद का फेस्टिवल भी आ रहा है तो ईद के लिए ये बहुत ही अच्छा पकवान है दोस्तों। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए। देखिए ये कितने खूब लग रहे हैं। अभी ही खाने का मन हो रहा है ना। एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर इसे डालिए ताकि ये सारा तेल अब्सॉर्ब कर पाए। इसे केचप के साथ खाइए, मस्टर्ड सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ, ये बेहतरीन ही लगेगा। रसोई कंपनी का चिकन पॉपकॉर्न।